very interestingly an academician and a sports-based profile. So we would love to know your journey, sir. कहाँ से शुरू हुई? He founded that Naushala. So starting from there, taking inspiration from my father, I too started into one thing was education. When we see the society, the quality of education in India is not at par even now. Next Olympic medalist आपके स्कूल Definitely, से आ रहे हैं. definitely. इस बार आने की कोशिश रहेगी और उससे अगली बार definitely आएंगे. So, hi, welcome to this podcast, Andak sir. We are very excited to have you here. I would love to start off with your introduction to this for our viewers. And you have such an esteemed profile. So, Antak sir is the director appointed by the central government for the Delhi District Cricket Association and the founder and director of Fortune World School. Apart from that, numerous other projects like the Saksham organization and AD marketing and a lot of other things. Very interestingly, an academician and a sports-based profile. So we would love to know your journey, sir. कहाँ से शुरू हुई? How did you come on here? And how are these varied experiences shaping up? Yeah, thank you, Shrishana. It's a pleasure to be here with you today. And as you mentioned my introduction. Yeah, definitely I am fortunate to experience so many different fields. And it's just like that as I started after completing my MBA and my graduation, then I pursued MBA and from the itself, James Sister College, from there I did that. From the University Hansraj College, I did my graduation. And thereafter, after completing my education, I joined my family business. Our business, basically, it is like paper trading and manufacturing. We had certain plants where we were procuring papers, importing also. And we did that, and I, along with my dad and my family members, we enhanced it further. We started exporting to various countries, and the use, but gradually satisfaction was not there. So somewhere, somehow, my father being into very he's a philanthropist, I would say, into various organizations. He is running RSS-based Gaushana. So he has been the general secretary of that Gaushana. Mr. Ashok Singh, previously the president of Vishwa Hindu Parishad. He founded that Gaushana. So starting from there, taking inspiration from my father, I too started into one thing was education. When we see the society, the quality of education in India is not at par even now. I can refer the time when we talk about the time of Takshila, Nalanda University. The entire world want to study in India. People were coming from as far as Europe, मेसोपोटामिया, And अब सबको बाहर जाना है. अब सबको बाहर जाना है. अभी बच्चे जिसके 11th में आते हैं उसको लगता है कि मैं अपने बच्चे का फ्यूचर कहाँ देखूं. दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो 99% होगा तो ही एडमिशन मिलेगा. प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा. तो सर को टारगेट करता है मेरा बच्चा 90% वाला की है तो एवरीबडी स्टार्ट की मैं यूएस भेज देता हूँ, क्योंकि उस लेवल का एजुकेशन यहाँ नहीं है. और जबकि हम विश्व गुरु रहे हैं, पूरी दुनिया यहाँ पढ़ना चाहती थी. आई रेड वेरियस प्लेसेस की 10 में से एक का सिलेक्शन इंडिया में होगा. नालंदा के डोर पे ऑल द वे फ्रॉम मेसोपोटामिया somebody is coming, उनकी टेस्टिंग होती थी और 10 में से एक बच्चे का एडमिशन होता था. इस तरह का हमारा गौरवशाली एजुकेशन सिस्टम था, जिसको आज जिस देश, इसीलिए हमारे देश को विश्व गुरु कहा जाता था. यहाँ पे मतलब हम बात करें, हर चीज यहाँ से पैदा हुई है. मतलब हम रामायण को अगर रेफर करते हैं, लक्ष्मण को जो संजीवनी बूटी से ठीक किया गया, तो इतने हजारों साल पहले मतलब आयुर्वेद ही था कि साइंस भी इंडिया से डेवलप. कोई पिल्स तो थी नहीं जो हम उनको दे देते, गोली खा के वो ठीक हो जाते. बट सब कुछ था, एवरीथिंग वाज देयर. बट उसको एनहांस करने की जरूरत है, उसको लोगों की नॉलेज में लाने की जरूरत है कि वी हैव एवरीथिंग. वी शुड नॉट थिंक कि हमारी कंट्री में कुछ नहीं. हमारी कंट्री ही सब चीजों के फाउंडर है. तो ये सब चीजें देखते हुए मुझे लगा एजुकेशन के अंदर देयर इज ह्यूज गैप. तो बहुत सारे हम स्कूल्स वैसे एज ट्रस्टी एज मेंबर दिल्ली के अंदर पार्टिसिपेशन रहता है. कई वो ट्रस्टी हैं, कई फादर ट्रस्टी हैं. बट एक इंटरनेशनल स्कूल इस लेवल का सेटअप करने का मन बना जहां इंडियन स्टूडेंट्स का फॉरेन स्टूडेंट्स भी पढ़ सके और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऐसा हो कि हर बच्चे को अपनी जरूरत के हिसाब से. ऐसा नहीं है कि उसको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी ही पढ़नी पड़े. ऐसा नहीं है उसका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है. चॉइस हाँ, तो सीरियस के लिए इतने सारे चॉइस है, स्किल बेस्ड इतनी सारी ऑप्शंस आ गई हैं कि बच्चों के लिए हर तरह से
जिस फील्ड में वो एक्सेल करना चाहते हैं उस फील्ड के अंदर वो चाहते एंड एनईपी का व्यू पॉइंट भी ये है कि बच्चे को जो चीज स्ट्रीम चूज करनी है, जो सब्जेक्ट चूज करना है, नॉट जस्ट स्ट्रीम, हैं। वो ये चूज करता है। बिल्कुल, बच्चों को देखिए क्या है, इंटरेस्ट एक तरफ है और हम फोर्सफुली उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो पेरेंट्स भी इस चीज को समझते हैं, हम देखते हैं उनकी टीम्स के अंदर पेरेंट आते हैं, बात होती है। तो अगर बच्चा किसी चीज में अच्छा है तो पेरेंट एडजस्ट करते हैं, कहते हैं मेरे बच्चे को लाइफ में सक्सेसफुल होना है, किस फील्ड में सक्सेसफुल होना है दैट डजंट मैटर। अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा बन सकता है ना, तो पढ़ाई के अंदर हर तरह की एडजस्टमेंट होती है। बच्चे को स्पोर्ट्स के अंदर गवर्नमेंट भी करती है, अगर हम कॉलेजेस के अंदर भी एडमिशन के कोटाज होते हैं, बच्चों को डांस अच्छा आता है तो डांस के कोटा होते हैं। आई हैव सीन सो मेनी गर्ल्स फ्रॉम आवर स्कूल दे टुक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, कालिंदी कॉलेज और कॉलेजेस। लेकिन तब भी at maximum, so even I was a Delhi University student and got admission through sports only, through badminton. But it is वहीं तक खत्म हो जाता है स्पोर्ट्स का एम्फेसिस फ्रॉम द पेरेंट पर्सपेक्टिव। वहां भी काम करने की जरूरत है। एज आई जॉइंड रिसेंटली, आई वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू रिलीज। तो टैलेंट की कमी नहीं है। अभी क्रिकेट तो इंडिया का मतलब मैं सकता हूँ ऑल द नेशनल गेम हमारा हॉकी है, बट क्रिकेट रिलीजन बन गया है एक तरह से वो गेम है हमारा नेशनल। तो मतलब एवरीवेयर यू गो तो इंडिया इज नोन फॉर क्रिकेट। तो वी नीड टू डेवलप ऑल सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स। बच्चों मतलब इंडिया 1952 के बाद फुटबॉल के ओलंपिक्स में कभी किसी पार्टिसिपेशन इंडिया का नहीं है। मतलब वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है आज के टाइम में और हमारी टीम टॉप 32 में भी नहीं आ सकती। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा डेवलप होगा, बच्चों को उसमें अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि अगर हम अब कैलकाटा के अंदर स्पोर्ट्स होता था, मोहम्मद गानों टीम हमने नाम सुना है, तो स्पोर्ट का लेवल कम नहीं था, बट टैलेंट की कमी नहीं थी कभी भी हमारे इंडिया के बच्चों में। बट वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है या फिर अपॉर्चुनिटी की है, उससे भी बड़ी माइंडसेट की प्रॉब्लम है, खासतौर में गर्ल्स के केस में। आई वुड से कि वहाँ थोड़ा पेरेंट का फोकस हो जाता है कि बच्चों को एज दे रीच इनटू मिड 20s तो थोड़ा सा डिविएट हो जाती है गर्ल्स की मैरिज एंड ऑल, थोड़ा उसमें हो जाता है। तो क्या है, टैलेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर टैलेंट है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। एंड ऑल्सो मिड 20s से भी पहले आई फील अपॉर्चुनिटी फॉर स्पोर्ट्स फॉर विमेन इन इंडिया, उससे काफी पहले उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है फ्रॉम द पेरेंट्स पर्सपेक्टिव की सेफ्टी कंसर्न्स कितने हैं। बच्चों के बैकग्राउंड से थोड़ा सा पेरेंट को जज कर सकते हैं। कई बार पेरेंट्स होते हैं कि आपका भी दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ मैरिंग एंड ऑल दैट थिंग। तो ये चीजें हैं, बट अभी जैसे दिल्ली क्रिकेट के अंदर वी हैव ऑर्गेनाइज्ड वुमेन्स प्रीमियर लीग ऑफ WPL is also going on alongside DPL. So it started, we have four teams, North Delhi, South Delhi, East Delhi, and West Delhi. So the teams are contesting, the player are all from Delhi. तो मैं देख रहा हूँ कि अभी इस बेसिस पे ना पूरे इंडिया के अंदर रेवोल्यूशन है। APL शुरू हो गया, आंध्रा के अंदर शुरू हो गया है, यूपी इज ऑल्सो स्टार्टिंग प्रीमियर लीग। तो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और बच्चे जब परफॉर्म करेंगे तो उनको रिकग्नाइजेशन भी मिलेगा और डेफिनेटली पेरेंट्स को भी समझ में आएगा कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची अच्छा कर रही है, इसको करने दो, दोबारा चांस नहीं मिलता है। जो बच्चा जहाँ पे अगर गैप आ गया तो उसका दोबारा चांस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और पर्सपेक्टिव जो देखा है मैंने कि इट इज ऑल्सो थॉट ऑफ कि स्पोर्ट्स के अंदर करियर बनाना एक अमीरों का काम है, इट्स अ रिच फैमिलीज थिंग। इफ यू डोंट हैव द रिसोर्सेज, आपके पास नहीं है वो सब रिसोर्सेज टू गेट देम टू दैट लेवल, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इक्विपमेंट, वो ट्रेनिंग एक्सेट्रा कराने का, तो वो वेस्ट हो जाएगा जो भी होगा। आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो सोना। बेसिकली क्या है, देखिए कुछ स्पोर्ट्स को अगर एक्सेप्शन है, क्रिकेट को एक्सेप्शन है, तो बाकी स्पोर्ट के अंदर तो मतलब आगे बढ़ने के बाद भी कई बार फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे। यहाँ तो क्या क्रिकेट के अंदर तो हम ये देखते हैं, थोड़ा सा अगर बच्चे ने एक सेंचुरी कर ली या कहीं 5 विकेट फॉल ले लिया तो स्पॉन्सर्स की लाइन लग जाए। बट वहां तक पहुंचने का जरूर थोड़ा मुश्किल रहता है। एज वी सी इनटू द लाइफ स्टोरीज ऑफ वेरियस क्रिकेटर्स, I was reading about Rishabh Pant's mother. She used to bring him all along from Meerut to Delhi every day and trained her. He focused. He achieved. Okay. तो आज किसी चीज की कमी नहीं है। तो he is one of the India's leading cricketers. बट यही अगर मैं दूसरे स्पोर्ट में देखता हूँ, अगर यही मैं हॉकी में देखता हूँ, फुटबॉल में देखता हूँ, तो इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं। तो उसके लिए वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं, कई बार वो काफी लो पेइंग स्केल गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं। एग्जैक्टली वही होता है। तो फिर वो आगे लंबा फ्यूचर नहीं दिखता। एक बार वो अपनी टैलेंट को अपने आप को चेक कर लेते हैं बच्चे, बट जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो पेरेंट्स की प्रेशर में फिर कहीं ना कहीं खुद भी उसको लगता है कि अभी नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आई शुड स्टार्ट माई करियर। दे हैव देयर फैमिलीज, एवरीबॉडी इज सो दैट वे
तो हमें एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है कि क्रिकेट के साथ साथ और स्पोर्ट्स के अंदर भी. सो आई वाज रिसेंटली इनटू डिस्कशन विद समबडी एंड वी हैव सम प्रोजेक्ट्स एंड प्रेजेंटेशन टू बी मेड टू द गवर्नमेंट, जिसके अंदर हम फुटबॉल के लिए खासतौर पर आई वाज वर्किंग अपॉन दैट थिंग कि हम फुटबॉल को क्यों नहीं इंडिया के अंदर बड़ा पॉपुलर पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर. जहां जाओगे, यूरोप में आप चले जाओगे, रिसेंटली आई वाज इन पेरिस लास्ट ईयर, तो ओलंपिक्स वहां पे हो रहे थे, तो मतलब देख के ऐसा लगता था माहौल ही फुटबॉल. मतलब चाय के कप से लेके आईफिल टावर के ऊपर हर जगह फुटबॉल के ही लोगो. तो एक माहौल ऐसा बना हुआ था. हमारे यहाँ क्रिकेट में ऐसा माहौल बन जाता है, पर फुटबॉल भी कहीं ना कहीं अगर धीरे से आएगा. हॉकी हमारा इतना टैलेंट रहा है, सो मेनी गोल्ड मेडल्स वी हैव वन. हॉकी को हम दोबारा से रिवाइव करें, कर भी नहीं, थोड़ा सा कोशिश चल रही है हॉकी में. बट कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं अभी, जैसे मैं देखता हूँ कि पिकल बॉल वगैरह कुछ नए स्पोर्ट्स आ रहे हैं, तो इनके अंदर अच्छा खेल रहे हैं बच्चे. वी आर आल्सो हैविंग पिकल बॉल कोच इन आवर स्कूल, फॉर्चून वर्ल्ड स्कूल नोएडा. तो कमिंग बैक टू योर स्कूल, तो ये आपका आइडिया है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड टू स्टार्ट अप विद अ स्कूल एंड मेक दिस हैपन? सी मैम, सोसाइटी के अंदर, मतलब एज आई सेड कि आई हैव सीन माय फादर इनटू ऑल दिस थिंग्स, सोशली ऑल दिस आल्सो. तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था व्हेन आई वाज इनटू इनटू बिजनेस, maybe you can say around, we started Fortune World School around 2012. Okay. So around 2010-11 we realized कि कुछ करना चाहिए समाज के लिए और विद एंटायर फोकस. तो क्या है, कई बार हम स्कूल्स बनाते हैं, ट्रस्ट वगैरह में स्कूल बनाते हैं, उधर ऐसा क्या रहता है कि मैनेजमेंट में हम पूरा इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं. तो वी थॉट कि एक ऐसा लोकेशन भी इम्पोर्टेंट है अजीब में. दिल्ली, गुड़गांव एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे वी कैन हैव इंटरनेशनल कंपनीज आते हैं, एमएनसीज आते हैं. तो अभी हमारे पास जैसे 11 नेशनलिटीज के बच्चे पढ़ते हैं, फ्रॉम साउथ कोरिया, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, सीरिया, मतलब सो मेनी स्टूडेंट्स दे आर देयर, तंजानिया, एंड अगेन सो रशियन स्टूडेंट्स. तो मतलब इससे क्या होता है, बड़ा एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहता है. वी हैड गीता वीक इन आवर स्कूल फ्यू इयर्स बैक. इन दैट वी, गीता इज सच अ थिंग दैट इज फॉर एवरीवन. उसके अंदर कोई रिलीजन नहीं है. तो व्हेन वी गिव लाइक गारंटीज फ्रॉम गीता आल्सो, स्टूडेंट्स को बताते हैं कि मतलब वी हैव स्पेशल स्किल क्लासेस इन व्हिच समटाइम गीता इज आल्सो कवर्ड. So when the Korean boy and girl, they were there, two students were there. They were, I guess they must be in class 11th and 9th. So they were there, the parents were working in Lotte. Lotte is a company from Korea. Okay. So the parents were working, the students were studying with us. Okay. So the girl got so much inclined that she gave a speech at Red Fort. A big program was there in which our students were attending. Okay. She gave a speech how Gita changed her thought process. And people were literally in tears. A Korean girl chanting words that Gita has changed her life. People were silently listening, and it was a wonderful scene to see, and it really impacted her. All thanks to आपके स्कूल में वो चीज ऐसे कराई जा रही है, राइट? स्कूल के तो हम देखिए क्या ना, पढ़ाना तो सबने, रिजल्ट पेरेंट्स को रहता है मेरे बच्चे के मार्क्स कितने आए, ये सब चीजें, पर साइड बाय साइड हम जब कल्चर्स को इन्वाइट करते हैं ना, आई वुड शेयर अबाउट आवर लास्ट जो हमने एनुअल डे का थीम था, इट वॉज बेस्ड ऑन गंगाधर रिवर. गंगा रिवर उत्तरांचल में गंगोत्री से चलती है ऊपर से और जाके सागर में मिलती है. जब गंगा चलती है तो उसके रास्ते में स्टेट्स कहाँ आते हैं, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, एंड देन बंगाल, एंड देन इट मर्जेस इन. तो हमने भारत की नारी को गंगा से जोड़ा. थीम वो सच है वंडरफुल. मतलब हमारे जो पेरेंट्स थे, 2000 पेरेंट्स वहां बैठे हुए थे, मतलब लिटरली सब आरती करते थे, गंगा आरती, और सबके आंखों में आंसू था. वो कह रहे थे कि ऐसा प्रोग्राम कैसे हो सकता है. मतलब उसमें थीम ये था कि हमने 4 स्टेट्स की 4 नारियों से गंगा को जोड़ा. हमने कहा देयर वाज अ माउंटेन हियर, चंद्री पॉल इन उत्तरांचल. जानते हैं तो सब जानते हैं, शी इज वेरी पॉपुलर फिगर. तो उनके ड्रीम्स को दिखाया दैट हाउ शी वांटेड टू कॉन्कर दैट लिस्ट. ओके. फैमिली सपोर्ट नहीं था, पीपल वर सेइंग अरे लड़की है कैसे कर. व्हेन शी कॉन्कर्ड, सो वी सेड शी इज गंगा फ्रॉम उत्तरांचल. देन वी टॉक अबाउट, हम गए उत्तर प्रदेश, रानी झांसी, लक्ष्मीबाई रानी. हम कहते हैं अंग्रेजों से लोहा लिया इन्होंने, देश के लिए जान कुर्बान. शी इज गंगा फ्रॉम उत्तर प्रदेश. फिर हम बिहार पहुंचते हैं, माता सीता. हम कहते हैं ये है गंगा जिन्होंने बिहार से. फिर हम जाते हैं बंगाल. बंगाल में आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, देयर वाज अ फेमिनिस्ट राइटर. शी रोट अबाउट सेक्सुअल डिजायर्स ऑफ फीमेल way back in 1885. Okay. When she wrote that, so her both the hands were chopped off.
Okay. At that time by the society people. She was a Muslim. Okay. तो ऐसा होने के बाद भी उन्होंने अपने विचारधारा चेंज करी. उन्होंने जो लिखा बुक्स अवेलेबल हैं, तो उनको हम कहते हैं कि वो गंगा है गंगा. जब हमने भारत की नारी को रिसर्च हुआ तो मतलब इट वाज एप्रिशिएटेड और हमारे बच्चों के अंदर एक नेचुरल फीलिंग आई टुवर्ड्स गंगा ऑल्सो, टुवर्ड्स वुमेन ऑफ इंडिया ऑल्सो, वुमेन ऑफ एंटायर वर्ल्ड आई वुड से. और एक सोच भी बन दे स्टार्ट आज की डेट में. इंस्टेड ऑफ लर्निंग थ्रू कि ये आप उनको टीचर्स बता देते कि ऐसे होता है, यू शुड थिंक दिस वे, यू शुड थिंक दैट वे. और आज की डेट में मैम क्या है कि गूगल चैट जीपीटी, आप सिर्फ बच्चों को हिंट दो, वो उसको पूरा एनालाइज कर लेंगे. उनको वो पता होगा जो हमें भी नहीं पता होगा. आप उन्हें बता दो, बस एक नाम बता दो कि रानी लक्ष्मीबाई, एंड दे नो एवरीथिंग, क्योंकि उनका इंटरेस्ट बन गया. अब कंटेंट इज नॉट द प्रॉब्लम इन दिस Yes. डे एंड एज. Yes. बच्चे के पास एक पढ़ने के लिए रिसोर्सेज की कमी नहीं है आफ्टर एआई इज बूम. So it's not like the teacher can tell something that the AI cannot tell, but it is the only way कि बच्चे के अंदर absolutely उसको जानने की चाहत तो कौन लाएगा. That is, I feel, the teacher's role सबसे बड़ा आज के लिए. बिल्कुल. But something that I would like to ask you, sir, is that आपको अपने स्कूल में, in Fortune World School, how do you find the current sports enthusiasm in students and parents? Not as a hobby, but actually taking a professionally. क्या आपको प्रॉब्लम्स लगते हैं? कैसा एंथुजियाज्म है बच्चों में, पेरेंट्स में? पेरेंट का क्या माइंडसेट है, बच्चों का क्या माइंडसेट है, और आपका क्या माइंडसेट है कि आपको नेक्स्ट ओलंपियन अपने स्कूल में से निकालना? देखिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्फीयर है. मतलब हम अपने स्कूल में जब बात करते हैं एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड कल्चर. कल्चर की बात हमने अभी तक की, एकेडमिक्स की हम करेंगे. स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं. स्पोर्ट्स एक बेसिक नेसेसिटी है मैम. मुझे लगता है जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं उनका कंसंट्रेशन लेवल इतना ज्यादा हो जाता है कि सपोज वो टेबल टेनिस में, वी हैव इंडियाज लार्जेस्ट टेबल टेनिस अकेडमी इन आवर यूनिवर्सिटीज. We have 12 international level tables in our school. Okay. And our students currently they are already in Hong Kong representing India under 16. Oh, how nice. Currently they're there. They are there. That is so interesting. Yeah. And last year they went to Doha and one of our girls, she won silver medal over there under 14 category. So we have introduced 17 different sports in our school. Just the purpose of 17 different sports is, it is not necessary कि हर बच्चे को क्रिकेट, फुटबॉल या वॉलीबॉल खेलना है. They can go for archery, they can go for shooting, they can go for chess, they can go for cricket, they can go for golf also. So all this infrastructure is in your school? Everything inside. 17 different sports playing. Pickleball is there, basketball is there, volleyball is there, table tennis is there, and indoor nets of cricket is there, and then fencing, talwarbazi is there. लक्ष्मी भाई हमने जिनको बनाया था पैनल में, they got trained there only. Okay. So that way, so इतना स्पोर्ट्स का जब हम देख रहे हैं कि बच्चों को कई बार हम भेज देते हैं, बच्चों को गर्ल्स चले गए तो ग्राउंड पे देखा बास्केटबॉल कोर्ट है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, और ये हमारा पिकल बॉल पर इंटरेस्ट नहीं तो देखो वो तो चेस रूम. बच्चों का देखा 6 साल का बच्चा होगा, माइंड इतना तेज कि दे कैन थिंक 7-8 मूव्स अहेड इन चेस. तो मुझे क्या जरूरत है उस बच्चे को मैं फोर्सफुली क्रिकेट खिलाऊं, मुझे या फोर्सफुली पढ़ाऊं. वो बच्चा क्रिकेट के अंदर, चेस के अंदर मतलब वो कर सकता है जो विश्वनाथन आनंद ने इंडिया के. और आज तो हमारा इंडिया का टैलेंट जो है गुकेश एंड ऑल, दे आर डूइंग गर्ल्स में भी, मतलब जो हमारे साउथ इंडिया के कुछ स्कूल्स हैं, दे आर फोकसिंग ऑन चेस. तो वहां से इतना टैलेंट निकल रहा है. तो बच्चों में टैलेंट तो है, बस उसको नर्चर करने की जरूरत है. तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स इज गुड एज ए स्पोर्ट ऑल्सो, और वो एकेडमिकली उन बच्चों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है. इस वजह से स्पोर्ट्स जो सारा लाइफ स्किल की बात है, 21st सेंचुरी स्किल्स की बात है, आई थिंक स्पोर्ट्स एज अ वे ऑफ टीचिंग 21st सेंचुरी स्किल्स इज द बेस्ट डोमेन आउट देयर, इज द बेस्ट वे आउट देयर. चाहे हम लीडरशिप स्किल की बात करेंगे, टीम वर्क, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल, एवरीथिंग इज वेरी इंटीग्रेटेड इनटू स्पोर्ट्स बाय इटसेल्फ ओनली. एग्जैक्टली. ये सब जरूरी है. मैं देखिए क्या है ना, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है. आज वो किसी चीज के अंदर अच्छा है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस करना चाहता है, आई एम गुड इन दिस. और अगर वो लेवल उसका एक्सप्लोर ही नहीं हुआ, वो अकेडमिकली स्ट्रगल करता रहा, उसको लगा कि मैं पढ़ाई में, अरे मेरे तो 80 आ रहे हैं क्लास में, मैं तो टॉप 10 में आ ही नहीं पा रहा, तो बच्चे का कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस सेट होता है. उसको ये लगता है अरे मैं इस चीज में अच्छा हूँ, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा हूँ, लाइक आई एम गुड इन पॉटरी, आई एम गुड इन स्पोर्ट, आई एम गुड इन AI, आई एम गुड इन कंप्यूटर्स.
सो ऑप्शंस इतनी है, बच्चा अपना एक्सप्लोर करे एटलीस्ट, बट टेकिंग स्पोर्ट्स एज सीरियसली एज करियर बिल्डिंग, वो कैसा माइंडसेट है बच्चों का? देखिए मैम, ये ना स्पोर्ट्स को करियर बनाना एक जॉइंट वेंचर है। इसमें पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। बच्चे में टैलेंट होना चाहिए, स्कूल एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करता है। आज अगर किसी बच्चे के पास कोई टैलेंट है तो पेरेंट के पास हो सकता है वो जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं एक दो स्पोर्ट्स के अंदर वहां चेक करेगा, बच्चे को खुद नहीं पता मैं इस चीज में अच्छा हूँ। आई रिसेंटली एग्जाम्पल वी हैव बैडमिंटन कोर्स इन आवर, so very nice by badminton courts we are having a synthetic courts and students are practicing. Recently we have started that around 6 months back only. So हमारे सोसाइटी से हमारे जो स्कूल के आसपास जो लोकेलिटी है 105 नोएडा, तो वहाँ के आरडब्ल्यू प्रिंसिपल का एक दिन मेरे पास फोन आता है कि बोलता देखिए बच्चे हैं हमारे रिलेटिव्स थे और इनको टेबल टेनिस के अंदर बहुत इंटरेस्ट है और बच्चे घर में काफी प्रैक्टिस करते हैं, तो एक बार जरा भेजिए ना कि टेबल टेनिस की इंडिया की लार्जेस्ट अकेडमी है हमारे पास, बच्चे वहां पे आए। और तो वो दो बच्चे तो वहां पे आए, साथ में उनका एक सिबलिंग कजन हीरो, वो आए तो उसने आके देखा बैडमिंटन कोर्स है। वो बच्चा आज हमारे he enrolled into our school. Previously they were not there. They enrolled in our school और उस बच्चे का टैलेंट इतना अच्छा था, बैडमिंटन उसने कभी खेला नहीं था और उसने खेला मैम 15 दिन के अंदर he was among us the top students in that sport और उनको हमने स्कॉलरशिप बेसिस पे स्कूल के अंदर लिया कि इस बच्चे को हम, तो उस बच्चे को अगर वो फैसिलिटी ना मिलती तो कभी अपने उस टैलेंट को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता। आई एम होपफुल वो इंडिया खेलेगा बच्चा। अच्छा इतना बढ़िया वो बच्चा खेल रहा है, मस्ट बी अराउंड 13-14 एज अभी। ओके, बट जब वो ग्रो अप करेगा आई एम श्योर कि वो बच्चा बैडमिंटन का कहीं ना कहीं इंडिया में रिप्रेजेंट करेगा। तो यही काम स्कूल का है, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना। फिर पेरेंट का सपोर्ट चाहिए, देखिए क्योंकि क्या बच्चे 2 बजे तक 3 बजे तक स्कूल से मिलते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को वो एनवायरमेंट प्रोवाइड करें, वो माइंडसेट करें, उसकी मेंटली उसको एनकरेज करें। एंड इस चीज से सबसे पहले तो ओके हो कि बच्चा एकेडमिक्स पे कम फोकस करेगा और उस पे ज्यादा फोकस करेगा। हाँ, वो कहे कि कोई बात नहीं आपके 60 नंबर आएगा, 60% आएगा, इट्स ओके। हाँ, बट आप खेलो, वो एक काफी बड़ा प्रॉब्लम है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स एंड हाउ मेनी पेरेंट्स डू यू थिंक आपके स्कूल में होंगे ऐसे जो एक्चुअली कंसिडर कर रहे होंगे कि नहीं वी वांट टू मेक आवर किड इनटू अ प्रोफेशनल एथलीट? हमें लगता है मैम कि मदर्स का फोकस ना थोड़ा एकेडमिक्स पे ज्यादा रहता है। अब कौन वो इंडियन मेंटालिटी इस तरीके से, और फादर्स जो होते हैं, चाहे सभी बच्चों की बात करें, सबके फादर चाहते हैं कि बच्चे एकेडमिकली मतलब थोड़ा एक ऐसा हमने एनालाइज करा कि मदर्स आर ऑलवेज फोकस कि बच्चे के मार्क्स आने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और फादर्स का थोड़ा फोकस रहता है कि और क्या कर सकता है बच्चा। तो उसमें मुझे लगता है कि जिस बच्चे को, कोई भी बच्चा है, एवरी चाइल्ड इज गुड इनफ। अब ये जरूर है कि कोई इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचेगा, कोई नेशनल पे देगा, बट एक बेसिक नॉलेज स्पोर्ट की सबको मिल रही है। फिर आगे कौन उसको परस्यू करता है, कैसे किस फील्ड में जाता है, वो डिपेंड करेगा। तो अगर कोई बच्चा आपके स्कूल में से अच्छा खेल रहा है, लेट्स से उसके पेरेंट्स भी ऑन बोर्ड हैं और आपके पास आपके स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है उनको ट्रेन करने के लिए, व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल जो बच्चा कर सकता है? एंड वो उधर, क्योंकि आई एम श्योर आगे गवर्नमेंट सपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट होती होगी, आगे फंडिंग सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती होगी, तो हाउ डज इट प्ले आउट? बच्चे को क्या क्या हर्डल फेस करने पड़ते हैं? अपॉर्चुनिटीज में कैसे मिलती है जब बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो इंटर स्कूल में पार्टिसिपेट करते हैं, इंटर स्कूल पार्टिसिपेट होते हैं, इंटर स्टेट पार्टिसिपेशन होता है, सीबीएसई नेशनल्स होते हैं जहाँ बच्चों को भेजना है। अभी हमारे बच्चे कुछ दिन पहले गए थे, आर्चरी के लिए गए थे, दिवाली को कैंप इन नैनीताल। तो अब बच्चे जब वहां पे भी परफॉर्म अच्छा करते हैं तो क्या है, हम मीडिया कवरेज करवा देना चाहिए। ओके, सपोज चाइल्ड हैज, जो हमारी बच्चे ने जिसमें दोहा में मैंने बताया, सो इट वाज कवर्ड इन ऑल लीडिंग न्यूज़पेपर्स ऑफ कंट्री। अभी हांगकांग से भी ऑल्दो भी लेवल्स चल रहे हैं, बट स्टिल वी आर कवरिंग दैट कि बच्चे वहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आर्चरी के अंदर बच्चों ने अचीव करा, इंटर स्कूल का, स्कूल के सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू, और हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स या मोस्ट रेड न्यूज पेपर्स हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं बच्चों को उनकी न्यूज डल पाते हैं। न्यूज ऑटोमेटिकली आती है जब अचीवमेंट लेवल होता है, हम भी उनसे कहते हैं कि भाई थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्रेस कीजिए। तो इससे क्या होता है, बच्चे का टैलेंट रिकॉग्नाइज होता है, तो अपॉर्चुनिटी से आगे कोचेज उस लेवल के हो जाते हैं। फिर हम स्कूल से जाके, जैसे अभी क्रिकेट के अंदर है, तो बच्चे जब स्कूल से करने के बाद आ जाते हैं तो उनके कोच हमें वहां इंट्रोड्यूस करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, लीग्स में करते हैं बच्चे। अभी क्रिकेट के अंदर हम जैसे देखें कि बच्चे अगर कोई भी है कि जैसे बीपीएल के अंदर
सिलेक्शन कैसे है, जो हमारे लीग्स हैं, इन लीग मैचेस होते रहते हैं, सामने एक बार होते हैं, तो उसके अंदर मोर देन 100 टीम्स होती हैं। उसके अंदर क्राइटेरिया रहता है कि किस बच्चे ने कितने विकेट लिए, किस प्लेयर ने कितने रन स्कोर करे। तो सिलेक्टेड फ्यू 45 सिलेक्ट हो गए, 45 में से एक टीम बनती है, जो उसके अंदर 11-15 बच्चे जो होते हैं उनको हम खिलाते हैं। तो उनमें से कौन बच्चा आगे एक्सेल कर जाए, कौन युवराज सिंह बन जाए, कौन विराट कोहली बन जाए, वो तो ये सब ट्रेनिंग और ये सब कोचेस, इन सब, और ये जो दूसरी दूसरी जगह लीग्स में खिलवाना, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल एंड एवरीथिंग, इस सब के जो रिसोर्सेज हैं, डज द स्कूल पे देम, डज द गवर्नमेंट पे देम, डज द पेरेंट पे इट, हाउ डज इट प्ले आउट? कहीं ना कहीं इनिशियल लेवल पे पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। हाँ, बट जब बच्चा रिकग्नाइज होता है स्कूल के बिहाफ पे जाना होता है, तो स्कूल उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ओके, कुछ परसेंटेज स्कूल पे करता है, कुछ परसेंटेज पेरेंट करते हैं। इस तरह से करके उसको प्रमोट किया जाता है, और कोई ज्यादा डेवलप होता है उसको स्कॉलरशिप दे दी जाती है। ओके, फॉर द एकेडमिक्स आल्सो। अकेडमिक्स ऑल्सो। और मतलब अगर हमें लगता है कोई बच्चा उस लेवल में खेल रहा है, तो फिर हम उसको सारी चीजों को मैनेज भी करते हैं। पेरेंट्स में कॉन्ट्रिब्यूशन नहीं रहता उसका। पर इनिशियल लेवल में पेरेंट्स को थोड़ा करना, क्योंकि बच्चे देखो ट्राई तो बहुत करते हैं, फिर जो अपने आप को प्रूव करता है तो उसमें फिर स्कूल इन्वॉल्व हो जाता है। और जब बच्चा उस लेवल में प्रूव करता है, फिर तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, फिर तो उसको पे भी करते हैं। सो डू यू थिंक कि ये वाला जो नोशन है पेरेंट्स के माइंड में कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी अगर कोई अच्छा एथलीट बनाना है अपने बच्चे को, वो गलत है, या इट इज स्टेमिंग फ्रॉम द राइट मेंटालिटी? स्पोर्ट टू स्पोर्ट वेरी कर रहा है मैम। थोड़ा सा एनवायरमेंट जैसे जिन स्पोर्ट्स का बना हुआ है कंट्री में, हाँ, जो इंडिया जिन स्पोर्ट्स में इंडिया का नाम है, जैसे क्रिकेट, क्रिकेट है, जैसे जैसे मैं देखता हूँ कबड्डी भी अच्छा चल रहा है, बैडमिंटन और बैडमिंटन इज ग्रोइंग, टेनिस के अंदर भी थोड़ा अगर बच्चे आते हैं तो रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, स्क्वॉश के अंदर पिटिशन है देखा था। ये कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं, आर्चरी के अंदर इज गुड, शूटिंग के अंदर इंडिया इज प्रोवाइड सो मेनी गुड मैचेस। तो इन स्पोर्ट्स के अंदर थोड़े के अंदर, इसके अंदर रेसलिंग के अंदर भी यू कैन से ऑब्वियसली थोड़ा एफर्ट करने के बाद अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाती है। ओके, तो मतलब इन्वेस्टमेंट कम है इन वाले स्पोर्ट्स इन में वाले जो रिकॉग्नाइज्ड है। और ओके, ये बात पक्की है कि अगर बच्चा टैलेंटेड है और फोकस्ड है तो वो अचीव करे, और जब अचीव करेगा तो कोई भी इन्वेस्टमेंट है, आजकल तो जैसे एजुकेशन लोन्स होते हैं स्पोर्ट्स के अंदर भी, जैसे और कहीं ना कहीं क्या होता है कि पेरेंट्स एक इनिशियल लेवल पे बच्चे को प्रमोट करता है, उसका जहां भी बच्चा पढ़ रहा है, जिस भी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है, अगर वो टैलेंट अच्छा रहता है तो वो स्कूल कॉलेज भी कहीं ना कहीं उस बड़े को शेयर रिकॉग्नाइज करते हैं, बिकॉज वो स्कूल के लिए भी बहुत प्राउड बात है। अगर मेरे किसी बच्चे का नाम न्यूज़पेपर की हेडलाइन में आता, सपोज विराट कोहली मेरे स्कूल में पढ़ा होता, हाँ, तो मुझे क्या चाहिए? राइट राइट तो मतलब ये चीजें बहुत मैटर करती तो हैं। पेरेंट की मेंटालिटी थोड़ी सी यहाँ पे चेंज होनी चाहिए कि इट्स नॉट अबाउट, ये हिंड्रेंस नहीं है। अर्बन एरियाज में इतनी हिंड्रेंस नहीं है, थोड़ा आई थिंक रूरल एरिया, बिकॉज उधर के स्कूल्स भी इट इज बिकम, दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली, ये जो एलिटिज्म है इन स्पोर्ट्स, जो कि अगर हम कुछ स्टेट्स छोड़ दें, जैसे हरियाणा इज अ वेरी स्पोर्ट्स सेंट्रिक स्टेट, तो वहाँ के तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वो वाले रिसोर्सेज भी है, वो माइंडसेट भी है। बट अगर हम पैन इंडिया बात करें, सो दैट माइंडसेट ऑफ गेटिंग इनटू स्पोर्ट्स इज समथिंग जो सिर्फ एलीट स्कूल्स के बच्चे अफोर्ड कर पा रहे करेंटली। ऐसा नहीं मैम, ऐसा देखिए इसमें क्या है, कुछ स्पोर्ट्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, बट अगर यू टॉक अबाउट मैराथन, उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पेयर ऑफ शूज चाहिए बच्चों को, और स्पिरिट चाहिए। मतलब मैंने देखा है थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, दे आर इवन मोर एंथुसियास्टिक एंड बेटर इन स्पोर्ट्स। अगर हम जब बच्चों को भेजते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, तो जो बच्चा थोड़ा अपब्रिंगिंग जिसकी थोड़ी सी रफ होती है, बच्चा जो थोड़ा मतलब हर तरह के माहौल में रहा होता है, पैम्पर्ड नहीं होता, जो मतलब इंडिपेंडेंटली अपनी साइकिल पे आता है, अपनी साइकिल पे जाता है, पेरेंट जरूरी नहीं है कि ड्राइवर ही ड्रॉप करके जाए, ड्राइवर ही लेके, तो वो बच्चे स्पोर्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो मेडल्स लेकर आते हैं, ऐसा हमने ऑब्जर्व करा। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे वाले, पर स्पोर्ट टू स्पोर्ट जैसे जिसमें रेस है, रेसलिंग है, इस तरह के स्पोर्ट के अंदर बच्चों का स्टेमिना, बच्चों का अपब्रिंगिंग, बच्चों के डाइट वगैरह थोड़ा उस तरह से होती है, इस वजह से बिकॉज डाइट इज ऑल्सो एक काफी बड़ा एक्सपेंस बिल्कुल जो पेरेंट के माइंड में आता है कि एक एथलीट को बनाने में बहुत कुछ लगता है, नॉट जस्ट ट्रेनिंग, नॉट जस्ट एवरीथिंग, एंड कहीं ना कहीं वो एक पेरेंट की भी लाइफ चॉइस है, लाइफ डिसीजन है। मैडम ये बहुत जरूरी है, आप सही कह रहे हैं, पेरेंट के लिए बहुत स्ट्रगल है। समटाइम्स पेरेंट के पास उतनी रिसोर्सेज नहीं होती, पर बच्चा टैलेंटेड होता है तो वो अपना सब कुछ लगा देता है। अच्छा, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बट डू यू थिंक गिवन की जो करंट स्टेट है, जो
एथलीट्स, उन्होंने इतनी मेहनत की, उनके पेरेंट्स ने उनसे भी डबल मेहनत की, अपने इतने सारे रिसोर्स, एक तरीके से पूरी लाइफ की कमाई उन्होंने इस चीज में स्पेंड की टू मेक देयर किड अ गुड athlete and to get a medal also in international organizations or even in Olympics. एंड जब वो वापस आते हैं तो उनको इंडिया में वो रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, स्पेशली इन द नॉन फेम स्पोर्ट्स, राइट? एंड उनको जो सिर्फ गवर्नमेंट, लो पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स मिल रहे हैं, कई बार वो उसमें भी स्ट्रगल कर रहे हैं. तो जब ऐसा स्टेट ऑफ अफेयर्स है इन द करंट सिनेरियो एटलीस्ट, डू यू थिंक इट इज एक्चुअली वर्थ इट फ्रॉम अ पेरेंट्स पर्सपेक्टिव टू थिंक कि हम अपने बच्चे को कोई एथलीट बनाएंगे? Now India is changing fast. Hmm. Things are getting better every day. Hmm. I think बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए, बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए. They should go ahead. वो अच्छा करेंगे, एक बार कम रिकग्नाइज होगा, दूसरी बार ज्यादा होगा. जब बार बार होता है ना तो उस टैलेंट को कोई रोक नहीं पाता. Hmm. मुझे लगता है कि और पेरेंट्स का एफर्ट ना अपने बच्चों के लिए होता ही है. Hmm. पेरेंट्स आर समबडी जो बच्चों को अपना सब कुछ दे देते हैं, Hmm. चाहे उनका बच्चा स्पोर्ट्स में है, चाहे उन्हें अपने बच्चे को पायलट बनाना है, किसी भी फील्ड के अंदर बच्चों को देना है. आज डॉक्टर बनाने के अंदर इट्स ह्यूज एक्सपेंसेस, और बच्चा डॉक्टर बनता है. कई बार ऐसा भी होता है, पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बच्चा बनने के बाद डॉक्टर और कहीं और सेटल हो जाता है. Hmm. तो बड़ी स्ट्रगल होती है पेरेंट के लिए. पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बट पेरेंट एक ऐसी, मैं कहूंगा कि ऐसी जाति है जो निष्काम, निष्पक्ष उस बच्चे के लिए डिवोटेड है. Hmm. उनका तो सिर्फ एक ही मोटिव है कि मेरा बच्चा मेरे लिए. Hmm. और वो जो बच्चा जो मेडल लेके आ रहा है उसको चाहे कम रिकग्नाइज नहीं होगा, पर अगर पेरेंट उसको प्राउड है ना, अगर मुझे लगता है कि आज हमारा कोई बच्चा Hmm. मेडल लेके आता है तो पूरा स्कूल हमारा प्राउड है, उसकी फैमिली प्राउड है, बाकी देश भी धीरे धीरे प्राउड फील करेगा. और बेटर होगी और सिचुएशन आगे, बेटर. उसकी बेसिकली उसका लाइफस्टाइल बेटर होगा हाँ आफ्टर दैट. सो After. आफ्टर ही गेट सम रिकग्निशन देश के लिए अपने, हाँ उसके बाद उसका लाइफस्टाइल उस तरीके से शुड बी इम्प्रूव, ये सो दैट मोर एंड मोर पीपल आर अब नाउ विराट कोहली से ऑल किड्स आर इंस्पायर्ड. बिल्कुल Everybody wants to be the next Virat Kohli, the next Rishabh Pant, बिल्कुल. but very few people, very few kids want to be the next athlete जो सिर्फ एक लो इनकम गवर्नमेंट जॉब में आ गए, राइट? थोड़ा So, फर्क है. वो चेंज लाने की एक आप, प्रयास रहेगा नॉर्म्स के अंदर. राइट? अभी क्रिकेट के साथ साथ बाकी स्पोर्ट्स पे भी फोकस कर रही है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी काफी एफर्ट कर रही है, मतलब ओलंपिक्स के अंदर भी अभी ज्यादा इंडियन प्लेयर्स जाने लगे हैं. पहले बहुत लिमिटेड रहता था, थोड़ा सा मतलब इंडिया की इकोनॉमी भी सुधर रही है, तो थिंग्स आर गेटिंग बेटर. तो सून विल एक्वायर ऑल दैट. So, if you were given an opportunity for one day जहाँ पे आप इंडियन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी मेकिंग में कुछ भी चेंज कर सकते हो, तो आप क्या चेंज करोगे? मुझे लगता है मैम, अगर मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर अ डे, विद इन अ डे आई विल पास सर्टेन थिंग्स वेयर इन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है. हमारे पास बच्चों को बताने के लिए कि ये स्पोर्ट्स अवेलेबिलिटी है, ये स्पोर्ट्स में आप कर सकते हो, तो हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की जरूरत है. कुछ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स होते हैं, बाकी जो स्पोर्ट्स हैं जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, ओलंपिक्स के अंदर जितने भी गेम्स हैं, मैं चाहूंगा कि मेरे देश के अंदर वो बच्चे, सब बच्चे सारे गेम्स के अंदर हमारी टीम्स पहुंचे. और इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो बच्चे डेफिनेटली दे विल टेक इंटरेस्ट. बाकी हमारा काम कोचेस का है, वो भी सब चीजें डेवलप होगी, चाहे हमारे इंडियन कोचेस हो, चाहे हमें बाहर से कोचेस मंगवाने पड़े, बट स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप हो जाएगा. Okay, that's very nice. So, as we have seen that you're also the secretary of the Independent School Owners Association, Yes, ma'am. being the voice of all those schools which are in that association, what do you think is the biggest hindrance जो अभी तक solve नहीं हुई है from a school's perspective to make a better sports infrastructure? Because for a lot of schools, sport infrastructure is an admission boosting mechanism. Right. That we have this, all of this to check mark these boxes. That okay, basketball court, we have it. Cricket pitch, we have it. Tennis court, we have it. So all of that, the reason for that in a lot of cases is not that बच्चे उसको खेले ना आगे कुछ उसमें medals लाए या कुछ करे. The primary reason for developing sports infrastructure in a lot of private schools is also to boost the admission rates. So with this mindset in mind, what do you think is the school owner's mindset and the hurdles they face here? Ma'am, as a school owner and as into a sports government-based organization, I feel the ultimate purpose of school
एंड बोथ पेरेंट इज स्पोर्ट अगर होगा वहां पे तो इसलिए होगा बच्चा आगे बढ़ सके। पेरेंट भी एडमिशन के टाइम पे क्या देखता है कि ये स्पोर्ट की अपॉर्चुनिटी मेरे बच्चे को मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो होना जरूरी है। एडमिशन काउंसलर है वो डेफिनेटली बताएगा हमारे पास स्पोर्ट्स है, बट अल्टीमेटली पेरेंट का फोकस भी है उस अगर उसको वो स्पोर्ट उसको लगता है मैं अपने बच्चों को इन स्पोर्ट्स में से कोई चॉइस मिल सकती है, ये चॉइसेस हैं, तो अगर वो नहीं होगा तो वो सोचेगा कि मुझे शायद स्कूल के अंदर मेरे बच्चे की ग्रूमिंग सही नहीं होगी। तो उस बेसिस पे बेशक पेरेंट एडमिशन का डिसीजन ले रहा है, बट स्कूल का ये डिसीजन है, स्कूल का सोच जो है वो ये है कि उन बच्चों को ऐसा बनाए कि कल को उनका नाम रोशन हो, स्कूल का नाम रोशन। एंड वो बिजनेस सेंस भी बनाता है, सो द इन्वेस्टमेंट इवन इफ वन किड comes up and does something really good from your school, so वो सारी investment that you have made on the sports infrastructure anyways will be returned 10x. मेनली वो है ठीक है उसमें, बट मेनली जो फोकस है वो ये है कि उससे स्कूल को एक नाम मिलता है। स्कूल को जैसे आपका मान लीजिए सीबीएसई टॉपर अगर हमारे स्कूल से होगा तो हमें नाम मिलता है। बट यू लुक एट कि सीबीएसई टॉपर्स को या जेई टॉपर्स फ्रॉम अ स्कूल, वो दे आर स्टिल मच मोर सेलिब्रेटेड देन the sports athletes or the students who have achieved something from the school are. So what can we do to change that कि वो बच्चे भी एटलीस्ट उतना ही सेलिब्रेट हो। शॉर्ट सेलिब्रेशन होती है मैम वाली, हाँ, बट स्पोर्ट्स वाली जो होती है वो लॉन्ग सेलिब्रेशन। ओके, अगर बच्चा कोई कर रहा है स्पोर्ट में अच्छा तो वो करता रहे, 12th का रिजल्ट एक बार आता है, हाँ, उसकी सेलिब्रेशन हुई, खत्म हो गई। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बच्चे जो उन्होंने टॉप किया था उनको लाइफ में आगे जाके रियलाइज होता है कि कुछ भी नहीं सीखा हमने, इवन व्हेन वी वर टॉपर्स। बट या जो बच्चा स्पोर्ट ओवरऑल डेवलपमेंट में होलिस्टिक डेवलपमेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि बच्चा कहीं खड़ा हो जाए, व्यक्ति कहीं खड़ा हो जाए, वो हर जगह अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, हर जगह उसका एक और है। बट एक फील्ड के अंदर आप बहुत अच्छे हो और दूसरी फील्ड का कोई नॉलेज नहीं है, तो दिस इज समथिंग जो हम एडवोकेट नहीं करते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे, हमारे देश के बच्चे ऐसे हो कि दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे वो खड़े हो जाए, उनका ऑरा ऐसा हो जैसा स्वामी विवेकानंद का। That's very nice. And also, एक क्वेश्चन मेरा इधर कि जैसे आप फॉर्चून वर्ल्ड स्कूल स्टूडेंट्स आर वेरी privileged to have a leadership who also is also into sports in other arenas, and they also have the know the value of sports as a career option and everything. But a lot of school leadership doesn't think like that. So do you think there is a lack of interest from the leaders also, or there is a lack of knowledge? हो सकता है वो चाहते हो कि उनके बच्चों में से भी स्पोर्ट्स में आगे अच्छा करेंगे बच्चे, बट यू थिंक देयर इज अ नीड टू एक्चुअली कोच एंड ट्रेन द स्कूल लीडर्स फर्स्ट, कि कैसे अपने स्कूल के बच्चों में दे कैन इनबिल्ट मोर स्पोर्ट्स एंथुजियाज्म एंड टैलेंट टू टेक इट अप प्रोफेशनली। एक्चुअली दीस थिंग्स कम फ्रॉम द टॉप। या तो इसमें इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ स्कूल स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंट मानते हैं, स्पोर्ट्स में करते हैं। कुछ स्कूल ने टारगेट किया हुआ है कि हमें बच्चों को नीट चाहिए के अंदर एक्सेल करना है, तो उनका एकेडमिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, पर इसमें पेरेंट के पास चॉइस है। मतलब पेरेंट को लगता है कि मुझे अपने बच्चे को उस फील्ड में ही भेजना है, नीट की तैयारी ही करवानी है, जेई के अंदर इश्यूज, तो पेरेंट वहां जाता है, तो क्या होता है वो स्कूल्स का एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है कि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। जहां हम स्पोर्ट में तैयारी कर रहे हैं, हमारे स्पोर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाता है, तो हम और ज्यादा एंथुसियास्टिकली स्पोर्ट्स को डेवलप करते हैं। बट उसके अंदर डोंट यू थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम दैट बच्चे को और पेरेंट को भी फॉर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एज तो श्योरली नहीं पता है, राइट? एज यू सेड अर्लियर दैट बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू एक्चुअली एक्सप्लोर दैट ओके दिस इज समथिंग आई विल आल्सो ट्राई आउट, मे बी आई एम गुड इन दिस, मे बी आई एम गुड इन स्पोर्ट, मे बी आई एम गुड इन एकेडमिक्स, मे बी आई एम गुड इन आर्ट एंड क्राफ्ट, बट दैट इज एन अपॉर्चुनिटी जो उनको स्टार्टिंग से नहीं मे बी दे राइट। सो इफ अ स्कूल इज वेरी academically oriented, the parent at the time of admission is not thinking this way, right? So ideally, at least in the beginning ages, until the kid is 14, 15, it is very least circumstances when the parents and the kid is sure that they want to take up sports professionally. वरना at that point in time, the kid is exploring also. करेक्ट मैम, ये देखिए गवर्नमेंट की तरफ से भी है, मतलब कभी भी कोई स्कूल नया बनता है, पुराने स्कूल है, तो स्पोर्ट्स का ग्राउंड होना बहुत कंपल्सरी है। प्रीवियसली गवर्नमेंट यूज्ड टू प्रोवाइड, आप अगर नया स्कूल बना रहे हैं आज से 40 साल पहले की बात करूं मैं,
तो एक नया स्कूल बना रहे हैं तो साथ में आपको जितनी एरिया आपने स्कूल के लिए है उतना प्लेग्राउंड आपको गवर्नमेंट की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। धीरे धीरे फिर लैंड्स के प्राइसेस वगैरह ऐसे हो गए तो पीपल आर, बट अभी जो नक्शा पास होता है जो स्कूल बनता है तो उसके अंदर स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स के लिए है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मैंडेटेड। उस प्ले ग्राउंड के अंदर क्या स्पोर्ट्स आज के, मतलब आप एक प्ले ग्राउंड बना देते हो, बच्चों को वॉक करा दिया, बच्चों को गेम्स करा दिया, क्रिकेट खेल दिया, फुटबॉल खेल दिया, बेसिकली। बट अल्टीमेटली आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जब तक लीडर्स का फोकस नहीं होगा कि हम अपने बच्चों को ये वाली अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। अभी शूटिंग से इंस्पायर होते हैं आफ्टर दे वन दोस गोल्ड मेडल्स। तो उसके बाद से शूटिंग का ऐसा एनवायरनमेंट बना। वी वर द फर्स्ट स्कूल इन नोएडा टू इंट्रोड्यूस शूटिंग अकेडमी। हमारी शूटिंग अकेडमी में 12 पुलिस हैं और बच्चे आते हैं, मतलब इवन मतलब जो बच्चे हमारे हैं वो तो है ही स्कूल के। इवनिंग आवर्स में ही वी कीप सम ट्रेनिंग सेशंस जहाँ बाहर से बच्चे भी आ जाते हैं और हमारे बच्चे भी रहते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी हमारे जैसे स्कूल पूरी सोसाइटी के बच्चों को दे रहे हैं, तो उसका एडवांटेज सब ले सकते हैं। आई थिंक वो कभी पूरी कर रहे हैं। That should be shared by other school owners also to make like a gigantic change happen. I think वो एक topmost level पे mindset change ये mindset जरूरी है because I remember मेरे I think companies like you who are meeting so many people who are engaged with so many school owners also, तो एक ये वॉइस आपकी तरफ से भी सबमिट में जाना चाहिए कि स्पोर्ट्स आर दैट इम्पोर्टेंट, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंड सबका बनता है कि बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी है तो जरूरी। And I think that stems from the right fact also. So if you see about skills, जैसे even basic skills like digital marketing skill or even communication skill or all other skills which are vocational skills, now it is a very big system that the school is also focusing on. Parents are also liking because there is वो tangibility उसके साथ attach हो गई है that even if my child doesn't do well academically, if he is learning that skill, he or she can still earn in the future. Correct. I think if that tangibility will come in sports, because there was a time 5 years ago, 6 years ago only, when that was the same thing with skill-based education also. Right. That we talk of skill-based education up until 12th, and school अपना काम कर भी देगा skill-based education करने के लिए. But will the child get the college admissions or the placements on the basis of skill or on the basis of marks? Yes. So earlier it used to be on the basis of marks only. Okay. So that is why that mentality is there. Yeah, but career is important. कि बच्चा आगे लाइफ में सक्सेसफुल होगा, वो financially stable हो पाए. So that kind of security of a career option is still, I feel, yet to come in sports. Correct. Sports के अंदर अभी देखिए क्या है कि it's not, ऐसा नहीं है कि हमने स्पोर्ट्स के अंदर बच्चा कोई अच्छा कर रहा है तो अब देखिए इंडियन नेशनल टीम सेलेक्ट होनी है, उसके अंदर हम 15 बच्चे 20 प्लेयर्स हो सकते हैं। अगेन फिर आईपीएल कल्चर बना, उसके अंदर यू हैव सो मेनी टीम्स। अब लोकल जो डीपीएल्स हो रहे हैं तो पीपल आर गेटिंग, पर कौन उस लेवल तक पहुंच पाएगा ये डिपेंड करेगा। देखो हर कोई नहीं पहुंच सकता वहां पे, हर फील्ड में ऐसा है। मान लीजिए डॉक्टर्स बनते हैं तो जरूरी नहीं है कि कोई उस लेवल का डॉक्टर बन सके। जरूरी एडवोकेट्स होते हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स ऐसे होते हैं जो बेसिक वर्क ही करते हैं, असिस्टेंट से रहते हैं, और एडवोकेट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी एक हियरिंग मैटर्स फॉर द केस एंटायरली। तो हर फील्ड में उस लेवल पे भी होंगे, हायर लेवल पे भी होंगे, उस लेवल पे भी होंगे, बट जो कोशिश करता रहेगा जो, और जो वो जरूर आगे बढ़ेगा। आई थिंक इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स देयर डेफिनेटली शुड बी सम और द अदर confidence that the parents get from the government also, from the society also, that it is also a stable career option. Absolutely, new sports are coming. Students will try into that. उन sports के अंदर जहाँ पे अभी इतना रश नहीं है, अभी पिकल बॉल जैसा डेवलप हो रहा है, तो आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ क्रेज इज देयर फॉर पिकल बॉल. People are liking it like anyway. It is quite easier than lawn tennis and some way close to badminton, like you can say. So people are very crazy. Boys and girls they're playing together, families they're playing together. Yeah. तो इस तरह के स्पोर्ट में you never know कब हमारे कुछ अच्छे प्लेयर्स निकल के आए और हम किसी ग्लोबल कंपटीशन के अंदर अच्छा इसमें अचीव करें, तो पॉपुलैरिटी चीजों की ऐसी होती है. 1983 में जब कपिल देव ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप नहीं जीता होता उस टीम में, तो क्रिकेट भी नहीं मिलती, तो सचिन तेंदुलकर को इंस्पिरेशन नहीं मिलती. सचिन तेंदुलकर नहीं होते तो रोहित शर्मा विराट कोहली को इंस्पिरेशन मिलती. रोहित शर्मा विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी नहीं होते तो आज की जनरेशन को इंस्पिरेशन है. तो ये तो इंस्पिरेशन जनरेशंस में आती है,
पर अगर आती है तो फिर वो चीज स्ट्रॉन्ग हो जाती है. That's very interesting, sir, and बहुत अच्छी conversation रही है ये. We are just last question that I would like to ask you is that if what do you think is जो आप parting words parent को कहना चाहोगे जो which are thinking that okay maybe I should put my kid into academics only because वो stable है safe है or maybe all these new career streams that are now coming up or I should completely give the responsibility and the resources to making my kid into an athlete only. So what would you give your parting words to that parent? The parents should see that what exactly the child is good at. अगर वो debates में अच्छा है और बहुत अच्छे debates होता है, go for that. If is good in sports, interest है, बाहर जाने में interest है, go for that. If is good in computers, go for that. Opportunities की कमी नहीं है. मतलब आज जो professions हैं, मतलब मैं ये मानता हूँ जब हमारे करंट जो बच्चे आज स्कूल में हैं जब ये काम करने उतरेंगे कल 10 साल बाद 12 साल बाद तो जो आज जॉब्स हैं ये खत्म हो चुके होंगे. आउट ऑफ दिस 60% जॉब्स वुड बी ओवर. और वो क्या होंगे जॉब हमें अभी पता भी नहीं है. वो 60% जो नए जॉब्स जनरेट होंगे उनका जिनका हमें पता नहीं है कि वो कैसे होना है. डेटा एनालिसिस होते हैं मतलब इस तरह की चीजें होंगी जो आज किसी को क्लैरिटी नहीं है. बट अगर एक चाइल्ड ओवरऑल डेवलप होगा तो कहीं ना कहीं अपने आप को फिट कर लेगा और वो ऐसा करियर बना सकता है कि दे कैन डू रिमोट. उनको फ्लिपकार्ट भी बना सकता है, वो अमेजन जैसी कंपनी भी खड़ी कर सकता है, वो स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ सकता है. This is not the day and age of just focusing on academics only. Exactly. It is the day and age of working overall. So this last thing, what would your goal in terms of sports be for Fortune World School for the next 10 or 20 years? Fortune World School would be religiously working in front of sports. Like our focus would be to give students ample opportunities. They should be like basic training, then focusing them, then sending them to the various competition tournaments, and then if the children are doing good, promoting them to achieve something for the country, playing for the state, playing for the country. That would be our goal. And next Olympic medalist आपके स्कूल से आ रहे हैं. डेफिनेटली इस बार आने की कोशिश रहेगी और उससे अगली बार डेफिनेटली है. That's amazing. इस बार कोशिश करेंगे हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करें और कोई ना कोई बच्चा नेक्स्ट ओलंपिक्स के अंदर डेफिनेटली हमारे स्कूल से होगा. मुझे ऐसा लगता है 17 डिफरेंट स्पोर्ट्स वे आर रनिंग. सो दैट इज जस्ट बिकॉज कि टैलेंट को वेस्ट नहीं जाने दिया जाए. टैलेंट किसी भी फील्ड का हो उसको हम वही पकड़ लेंगे और उस बच्चे को उस फील्ड में अगर वो फेंसिंग अच्छी करता है उसे फेंसिंग में ही बढ़ाएंगे आगे. अगर वो फुटबॉल अच्छी खेलता होगा फुटबॉल में आगे भेजेंगे. टीम बनाने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं रीजनल बनेगी, धीरे धीरे इंटरनेशनल भी बनेगी. इसी तरह किसी भी स्पोर्ट और क्रिकेट के अंदर तो आई एम इन्वॉल्व. अगर हमारे बच्चे वन ऑफ आवर चाइल्ड इज प्लेइंग फॉर हरियाणा के लिए दे वर प्लेइंग. So he is on there. So मतलब अच्छा है. मतलब we can see that child is talented enough. हो सकता है आगे वाले टाइम के अंदर. That's amazing, sir. I think I hope ये manifest होगा and आप भी याद करोगे that आपने यहाँ पे Let's Talk Education पे manifest. I will remember this conversation. That's amazing, and it was an absolutely inspiring conversation with you. It was lovely having you on this podcast, and I hope we do great things together and we see that a lot of success is coming on the sport and other fronts from Fortune World. Exactly. Don't worry, man. We'll definitely work on that.